the true determinants of success. If you believe in yourself, then nothing is impossible. An apt example is set by a man belonging to a middle-class family who also faced health issues, but today he has 9 Guinness World Record in his name. He is Vinod Kumar Chaudhary. Since his childhood, his inspiration has been athlete Milkha Singh. He always dreamed of doing something in the field of sports, but destiny has its own course. He is achieving heights in the field of typing. He has always fascinated by speed. As a child, he was very enthusiastic about sports, but as he grew up, he could not pursue sports due to some health issues. He then developed a similar passion for speed on the computer. He made his first record in 2014 when he typed 103 characters in 46.30 seconds with his nose. This is the shortest time taken so far to do this kind of typing. Once he got his certificate for the record, it gave him a different kind of motivation and he started practicing for more such records. He dedicated the next 1 year practicing and in 2016 he made another record. In 2016 his second record was for fastest typing of all alphabets in 6.71 seconds. That too blindfolded. In 2017, he made a record of typing all alphabets in 18.6 seconds while holding a stick in his mouth. He is unstoppable. In 2018, he broke his own record by doing the same in 17.69 seconds and then again in 2019 in 17.1 seconds. In 2019, for fastest typing with one finger, he made another entry in the Guinness Book of World Record. He typed all alphabets in 29.53 seconds. His aim is to make over 19 entries in the Guinness Book, a record held by veteran cricketer Sachin Tendulkar. He keeps looking for new ideas and practicing for them. He wanted to run a computer institute with complete infrastructure where he can also help the needy. Currently, he is running the institute at home with a few computers where students can practice. But he has financial restraints and wishes to expand his institute one day. He is providing training to unprivileged and disabled free for cost. He is serving the society in the best way he can and has made the nation proud. He is determined to inspire millions of people. Many of his students have been selected in various government and private organizations. He is an inspiration for people who are determined to achieve heights in their lives. नमस्कार, मैं विनोद कुमार चौधरी 9 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। बचपन में सपना था एक धावक बनने का, मिल्खा सिंह की तरह कुछ ऐसा कर जाने का जो पूरी दुनिया मुझे जाने। लेकिन जिस तरह से प्रतिभा की हमेशा हार होती है कई जगहों पर, भारत में बहुत प्रतिभा ऐसी है जो सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारी समस्याओं के कारण जो है किसी न किसी कारण से दब जाती है। उनमें से मेरी प्रतिभा भी इसी तरह से दबी। लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन में हार नहीं माना और निरंतर रूप से मैं प्रयास करता रहा, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने कर्तव्य के क्षेत्र में हो। मैंने सभी चीजों को साथ लेके चला। एक गिनीज बुक का जो सफर था मेरा, वो शुरुआती तौर पे मेरे को कोरियर की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने एक ऑफिस में देखा एक व्यक्ति जो है टाइप कर रहा है राइट हैंड साइड में देख के, तो मेरे को वहीं से प्रेरणा मिली कि मैं अगर इसकी तरह से कुछ टाइप करूं तो मेरी जो है रोजी रोटी और अच्छी हो जाएगी और मैं जो है मेरी थोड़ी सैलरी अच्छी हो जाएगी, तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। तो वहीं से मैंने ईश्वर को जो है प्रे किया कि हे ईश्वर, अगर ये कौशल मेरे को सिखा दें आप, तो मेरा जो है जीवन सफल हो जाएगा। और ईश्वर ने मेरी बात को सुना और आज भी मैं जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हूँ। ये मेरे ईश्वर की ही कृपा थी, जो मैंने इनसे मांगा वो मुझे मिला।
मैं उनका तहे हृदय जो है शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने जो है मेरी बातों को हमेशा माना। उन्होंने मेरे हमेशा, चाहे मेरे को कहीं से सपोर्ट मिला ना मिला, लेकिन मुझे परमपिता परमेश्वर से हमेशा सपोर्ट मिला। जहां भी मैं फंसा, कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स आए, उन्होंने मुझे, चाहे मुझे कठोर परिश्रम ही क्यों ना करना पड़ा, मेरा रास्ता बनता गया। मैंने शुरुआती तौर में अखबार भी बांटे, कोरियर की नौकरी की। मैं एक समय ऐसा आया कि मैंने बोझा भी ढोया था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने सीखा था अपने बड़ों से कि बेटा नौकरी करनी है तो टोकरी की कमी नहीं है। तो मैं इसी सिद्धांत पे रहा कि जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, या मेरे गुरु ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि बेटा हमेशा जो है कठोर परिश्रम करो, निश्चित रूप से सफलता एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर आप 4 की मेहनत करते हैं तो आपसे 1 कोई नहीं छीन सकता, और 1 जो है आपके पूरे जीवन को सफल बना देती है। आप सब्र रखें थोड़ा सा और धैर्य रखें, निश्चित रूप से कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। चाहे आपको समाज, परिवार या कोई भी व्यक्ति साथ दे ना दे, आपको अपने कार्य को करते रहना है। तो इस तरह से मेरी जो है शुरुआती तौर में मेरा गिनीज का सफर रहा। फिर किसी व्यक्ति विशेष को मैंने टाइप करते हुए देखा और फिर उससे भी प्रेरणा ली, और फिर मैं वहां से स्टार्ट की। 2014 से मेरा यह सफर शुरू हुआ, आज 2021 हो चुके हैं। मेरे पास 9 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से 8 रिकॉर्ड्स टाइपिंग के अंदर हैं, और एक जो है अभी हाल ही में मैंने एक हाथ से बॉल उछाला है 1 मिनट में 205 बार। जो भले ही मैं वो धावक के रूप में इस तरह से कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैंने बॉल उछाल के जो है लोगों के दिलों में जगह बना ली। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह से मैं जो है भारत के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, भारत का नाम रोशन कर पा रहा हूँ विश्व स्तर पर। लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन रहा हूँ, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहा हूँ। वो मुझे देख के कुछ बच्चे जो है रोल मॉडल्स मुझे बना रहे हैं। कई बार मुझे कॉल्स भी आते हैं, जगह जगह से कॉल्स भी आते हैं, कहते हैं विनोद जी आपके जो स्किल्स हैं उसकी बदौलत जो है हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और आपका स्किल्स गजब के हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं। तो ये जब चीजें कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जो मेरा सपना धावक में पूरा नहीं हो पाया, वो ईश्वर ने कुछ इस तरह से पूरा किया। मैं आज के जो नवयुवक पीढ़ी है के बच्चे हैं, उन्हें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, मैंने जिस तरह से स्ट्रगल्स देखी, मैंने जैसी परिस्थितियां देखी, वो हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन उससे वो घबराए ना। ये आप निश्चित रूप से अपने कार्य को करते रहें, अपने कर्म को करते रहें, और कभी भी ये नहीं कि हाँ मैं एकदम से, कामयाबी कभी भी एकदम से नहीं मिलती है। जिस प्रकार एक फलदार वृक्ष आपने देखा होगा, वो उसको फलदार वृक्ष होने में कितना समय लगता है। पहले वो छोटा सा बीज होता है, फिर उसको जमीन में डाला जाता है, फिर उसको पानी से सींचा जाता है, फिर धूप लगती है, फिर उसके बाद कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, कभी बहुत धूप तेज हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, यानी इस तरह से मौसम चेंज होता रहता है। इसी तरीके से जीवन का भी मौसम चेंज होता रहता है। कभी आपके जीवन में अच्छा दिन आएगा, कभी आपके दिन में बुरा दिन आएगा, और यही सब करते करते एक दिन आप बड़े हो जाते हो, और उसके बाद जो है आपको सारी चीजें पता लगती हैं। और जो व्यक्ति जो है निरंतर जो है इन चीजों को सहता रहता है, जैसे वृक्ष सहता है, और फिर अंतिम में क्या होता है उसका रिजल्ट, कि वो फल देता है, लोगों को फल देता है, छाया देता है। इसी प्रकार से अगर आप निरंतर सहते रहे, समाज की, परिवार की, सभी तरह की जो घटनाओं से जो है जूझते रहे, तो निश्चित रूप से आप जो है एक वृक्ष की तरह भांति जो है लोगों को फल देंगे, आने वाले समय में लोगों को छाया देंगे। अपने कार्य, अपने कौशल की बदौलत जो है लोगों को कुछ न कुछ दे पाएंगे। मैं भी अभी जो है बच्चों को जो है कंप्यूटर सिखाता हूँ, टाइपिंग सिखाता हूँ, तो मेरे द्वारा कई बच्चे जो हैं जॉब्स पे भी लग रहे हैं, और कई वो अपने मेरे स्किल्स को जो है सीखते हैं, मैं उन्हें सिखाता हूँ, तो उसके माध्यम से वो आत्मनिर्भर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं जो है कुछ इस प्रकार से समाज के लिए रिकॉर्ड के अलावा मैं कुछ इस प्रकार से कर पा रहा हूँ। और मेरा जीवन भर मेरा सपना है कि मैं जो है
जैसे दिव्यांग लोग हैं या पुअर क्लास के बच्चे हैं, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं चाहता हूं कि वो उनको जिंदगी भर में इस तरह की सेवा दूं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। तो इस तरह से जो है मैं सामाजिक कार्य भी करना चाहता हूं। और मैं जो है एज ए टीचर के नाते में बच्चों को ये भी बताना चाहता हूं कि अपने टीचर की बातों को सुनें। आप जितना ध्यान से अपने टीचर की बात को सुनेंगे उतने ही अच्छे आप जो है अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। तो बस मैं अपनी बात को यही वाणी को अपने विराम देना चाहूंगा और नवी पीढ़ी को मैं जो है शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप कठोर परिश्रम से जो है अपने हर लक्ष्य को पा